Assalamu alaikum. Today is our second lecture, and this is about Mughal Empire history and multiple choice questions. I have collected all the previous questions that have already come in the exams, so that's why I have record this video, so it may be helpful for all. Okay, best of luck, and let's start now. The first question is Babur was born in the year. When Babur was born? Option is A is 1483, option B is 1583, option C is 1693, option D 1783. Here the correct option is 1483. यहाँ पे मैंने इसके लिए एक एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है कि फ़िलहाल समझने के लिए कि जो भी हैं वो सारी चीज़ें एक दफ़ा क्लियर हो जाएं एक ही जगह पे. Babur was born on 1483 and he was died on 1530. Okay, he is the first emperor of Mughal dynasty in India. The second question is Babur came to India originally from. बाबर कहाँ से आए थे इंडिया के अंदर, किस जगह से वो आए थे, वो पहले कहाँ पे रहते थे, वह कहाँ से फिर इंडिया की तरफ आए. तो ऑप्शन फर्स्ट है खीवा, ऑप्शन बी फरगना, ऑप्शन सी खुरासान, ऑप्शन डी सिस्तान. द करेक्ट ऑप्शन इज फरगना. हेयर एक्सप्लेनेशन है also given there. Zahiruddin Muhammad born on 14th February 1483 in the town of Andanjan in the Fargana Valley, which is modern Uzbekistan. Here's also option is Uzbekistan, so it may become so that's why I have already given the both options, and that's why I have already tick mark all the things and clearly, so you can be able to understand. The next question is that question number 3. Babur 1526 to 1530 AD was the ruler of which dynasty? We all know that he belongs to Mughal dynasty. And then question 4 is Babur was succeeded to the Mughal throne by. Babur was succeeded to the Mughal throne by. बाबर के बाद जो हैं वो कौन सा बादशाह जो मुगल थ्रोन थे वो बादशाह बने? ये फर्स्ट ऑप्शन इज शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी बहादुर शाह. We all know that after Babur, Humayun became the emperor of Mughal dynasty. So the correct option is C. Option next. He Mughal leader Babur originally invaded northern India. Option A to create. सबसे पहले इसको बताते हैं कि मुगल बाबर जो थे उन्होंने इंडिया पे मतलब कब्जा क्यों किया या हमला क्यों किया. तो ऑप्शन ए टू क्रिएट ए शायद मुस्लिम स्टेट, to because he was not. Option B because he was unable to achieve his ambitious goals in Central Asia. Option C to control the trade routes into the Southern East Asia to defeat the longest standing enemy, the Sultan of Delhi. The B option is correct because he was unable to achieve his ambitious goals. वो अपने जो उनके ambitious goals थे वो वहाँ पे वो सेंट्रल एशिया में अचीव नहीं कर सका, इस वजह से उन्होंने इंडिया पे हमला किया और यहाँ से जो भी माल दौलत थी और जो मतलब कि ऐशो अयाशी थी वो सारी यहाँ पे उनको मिल रही थी, तो उस वजह से इन्होंने इंडिया पे हमला किया. अकबर was enthroned in a garden at. अकबर को किस गार्डन के अंदर, किस बाग के अंदर उनके मतलब थ्रोन पहनाया गया, उनको किंग बनाया गया, उनको ताजपोशी की गई. ओके, एंथ्रोन. ऑप्शन है कालानूर by Bairam Khan, Ajmer, Gaur and Kabul. The best option is Kalanur. एंड और यहाँ पे मैंने की लिखा हुआ है कि बैरम खान जो थे उन्होंने ही ताजपोशी करवाई थी. ऑप्शन 7 द ओनली हिंदू कोर्टियर ऑफ अकबर हु एक्सेप्टेड दीन इलाही वाज. अकबर के जो कोर्ट थी उसके अंदर कौन से हिंदू थे जिसने दीन इलाही को फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट किया था, सबसे पहले एक्सेप्ट किया था, यही समझ लें. तो उसके जो मेन ऑप्शन है, ऑप्शन 7 का करेक्ट ऑप्शन है बी बिरबल. बिरबल was the first only Hindu courtier of Akbar who accepted Deen Ilahi.
Question number 8. Ramayana was translated into Persian at Akbar's court by whom? रामायण जो हिंदू किताब है, हिंदू मजहब की किताब है, उसको ट्रांसलेट किया था फारसी के अंदर। एक अकबर की कोर्ट के अंदर कोई बंदा था, उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था फारसी के अंदर रामायण को। तो वो कौन थे जिन्होंने ये फारसी के अंदर ट्रांसलेशन किए थे? तो करेक्ट ऑप्शन इज मौलाना अब्दुल कादिर बदियानी। Question number 9. Of the so-called 9 gems of the court of Akbar, the one who was a reputed poet of Hindi. अकबर के कोर्ट के अंदर जितने भी बंदे थे, जो भी उन्होंने अपने खास बंदे बनाए हुए थे, उनकी एक मशहूर बंदा था जिसको हिंदी का पोइट बना जाता था, मशहूर पोइट था हिंदी का। तो वो कौन था? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब्दुर्रहीम Khana, also known as Baba Rahim, was a poet who lived during the rule of Mughal Emperor Akbar. He was one of the most 9 important ministers को दीवान भी बोला जाता था उस टाइम in his court, and also known as Navartanas. Question number 10. Which was the second capital of Akbar? सेकेंड कैपिटल कौन सा था जो अकबर के बादशाह जोर हुकूमत के अंदर वो बना था? द फतेहपुर सिकरी, फ्रॉम आगरा टू अ न्यू सिटी विच नेम्ड फतेहपुर सिकरी द सिटी ऑफ विक्ट्री। आगरा के बाद जो सेकेंड जो कैपिटल बना हुआ था वो था फतेहपुर सिकरी, और इसको सिटी ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 11. वेयर फ्रेंच एस्टेब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री? फ्रांसीसियों ने सबसे पहले किस जगह फैक्ट्री बनाई? क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन है सूरत, ऑप्शन बी मसोलिपतम, ऑप्शन सी पुलिकैट, एंड ऑप्शन है कोचिन। देन क्वेश्चन नंबर 11, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए सूरत। फ्रेंच established first factory on Surat. Question number 12. What do you mean by the Mughal Zagir? Mughal Zagir. What do you mean by the Mughal Zagir? Here, option A, providing rent-free land, Zamidar's property. B option. C option is giving officer a right to venue. Option D, giving cash salary to Manspadar. Here the correct option is C, because Zangidar is the system of giving an official right to collect a revenue from a particular area called Zagir. ये उस इलाके के particular area मतलब कि ज़मींदार ज़गीर को बोला जाता है। ज़गीर वो जगह है जहाँ पे उस किसी ऑफिशियल अथॉरिटी को इख्तियार दी जाए कि वो किसी particular एरिया में किसी खास एरिया से वो अपना रेवेन्यू जनरेट करे, कलेक्ट करे, तो उसको ज़गीर बोलते हैं मुग़ल दौर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13. ड्यूरिंग द मुगल रूल द पुलिस ड्यूटीज इन द डिस्ट्रिक्ट्स वर एंट्रस्टेड टू द ऑफिशियल नोन एज। ये जो पुलिस की जो ड्यूटीज लगाई जाती थी मुगल दौर के अंदर, वो कौन लगाता था? ऑप्शन एज फौजदार, ऑप्शन बी मनसबदार, ऑप्शन सी कोटवाल, ऑप्शन डी अमीन। तो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज 13A. Question number 14. In the Mughal administration, military recruitment has been looked after by the Mughal administration के अंदर जो military recruitment होती थी, जो लोग रिक्रूट किए जाते थे, मतलब कि हायर किए जाते थे, लोग नौकरियों में आए करते थे, वो किस वजह से, कौन उनको लुक आफ्टर करता था, उनके मतलब वो प्रोसेस कौन चलाता था सारा का सारा? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो होते थे कौन? बख्शी। Question number 15. During whose reign did William Hawkins first visit the Mughal court to secure a right to trade in Mughal ports? ये किसके दौर हुकूमत के अंदर विलियम हॉकिंस जो थे, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने मुगल कोर्ट के अंदर आए और उन्होंने सिक्योर किया राइट जो है ना, अपना ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए उन्होंने मुआहदा तय किया, और मुगल कोर्ट के अंदर वो मुगल पोर्ट्स जो थे वहाँ पे काम करने की इजाज़त मिल गई। तो वो किसके दौर हुकूमत में था? अकबर की। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन है नॉट अकबर, इट्स जहांगीर। क्वेश्चन नंबर जहांगीर, करेक्ट ऑप्शन जहांगीर। जहांगीर के दौर के अंदर विलियम हॉकिंस को आज़ादी मिल गया, इख्तियार मिल गया था कि वो
मुगल कोर्ट्स पे काम करे। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर इज क्रेडिटेड विद द कंपोजिशन ऑफ हिंदी सॉन्ग्स? कौन से मुगल एम्परर हैं जिनको ये लक़ब दिया है कि वो कंपोजिशन ऑफ सॉन्ग्स, हिंदी सॉन्ग्स जो भी थे उनके बड़े मशहूर, मतलब कि वो शौकीन थे? ऑप्शन है बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, Jahangir. Jahangir was also the famous for music fond. He was very fond of. And question number 17, the Mughal architecture attained unrivaled magnificence during the reign of मुगल जो आर्किटेक्चर है सबसे ज़्यादा जो उन्होंने सबसे ज़्यादा मतलब शोहरत पाई वो किसके दौर हुकूमत के अंदर आई? ऑब्वियसली शाहजहां, हु कंस्ट्रक्टेड द ताजमहल, द जामा मस्जिद, द रेड फोर्ट एंड द शालीमार गार्डन्स इन लाहौर. आई हैव आल्सो क्लियर्ड ऑल द थिंग्स in one way, so it may be very easy for you. Question number 18, he Mughal school of painting was interested in portraying. The मुगल जो स्कूल ऑफ पेंटिंग जो मतलब जो भी वो पेंटिंग जो भी नक्शाजात करते थे, नक्शे नगारी करते थे, वो सारी की सारी जो करते थे वो मुगल कोर्ट्स पे ही होती थी। उसके अलावा कहीं भी उन्होंने कोई कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ वो मुगल कोर्ट पे ही काम करते रहते थे और कहीं भी उनके आसार या कोई भी पेंटिंग किसी दूसरी जगह नहीं मिलती। ऑप्शन 19, क्वेश्चन नंबर 19, कुछ औरंगजेब सेंट मुबारक खान अगेंस्ट, औरंगजेब ने मुबारक खान को किसके मुखालिफ में भेजा था? क्वेश्चन नंबर 19 का जो एक्चुअल आंसर है और राइट आंसर है वो है संभाजी को भेजा था मुबारक खान, मुबारक खान को भेजा था संभाजी के अगेंस्ट में। जिजिया वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द मुगल रूलर, जिजिया किसने अबोलिश खत्म किया था? अबोलिश्ड बाय मुगल रूलर, जिजिया किसने खत्म किया था? द करेक्ट ऑप्शन इज अकबर, अकबर ने जिजिया खत्म किया था। Which one of the following is not true about the first Anglo-Mysore war? सबसे जो इनकरेक्ट जो is not true about, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ट्रू नहीं है? तो हम जानते हैं कि ये तीनों ऑप्शन ट्रू नहीं हैं और हम इसका करेक्ट ऑप्शन है डी टक, because the first Anglo-Mysore war was fought in 760 between 1666 and 69. So was a conflict in India between the sultans of Mysore and the East India Company. These are the things that I have also covered in this section. So these are very important, and because कोई अगर पूछ ले कि मैसूर की जंग किसके बीच में हुई थी तो हमें पता होना चाहिए कि द सल्तनत ऑफ मैसूर एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। द डेड बॉडी ऑफ बाबर वा बाय हिज ओन चॉइस लाइज बरीड इन, जब डेड बॉडी ऑफ बाबर की जो थी वो कहाँ पे लाई के मतलब कहाँ दफनाया गया उनको? ऑप्शन है आगरा, फरगाना, समरकंद एंड काबुल। जो डेड बॉडी है बाबर की उसको काबुल में दफनाया गया, जबकि पहले इसको आगरा में दफनाया गया था, उसके बाद उन्होंने काबुल के अंदर इसको दफनाया है जो इसकी जो रिमेनिंग थी। Which Mughal emperor transferred the Mughal capital from Agra to Delhi? कौन से मुगल एम्परर थे जिन्होंने मुगल बादशाहत की जो थी कैपिटल था उसको आगरा से दिल्ली चेंज कर दिया? तो बिल्कुल शाहजहां थे। शाहजहां के दौरे हुकूमत में यह हुआ कि आगरा से कैपिटल चेंज हुआ दिल्ली की तरफ। आगरा वाज कैपिटल बाय अकबर एंड फ्रॉम आगरा टू दिल्ली बाय शिफ्टेड फ्रॉम शाहजहां इन 1638। ये याद कर लें कि ये 1638 के अंदर ये चेंज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच ईयर डिड बाबर इन्वेडेड इंडिया? तो हमें ये याद होना चाहिए कि इंडिया पे कब्जा कब किया था बाबर ने। तो ऑप्शन है 1530, 20, 26 एंड 55। द करेक्ट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 24 सी। वी ऑल नो दैट between 1526 to 1530 he was the ruler of India. Question number 25, Babur was originally the ruler of, बाबर ओरिजिनल कहाँ के रूलर थे असल? काबुल, पर्शिया, फरगना या कंधार? तो हमें सबको पता है कि ये फरगना के रूलर थे पहले, जब ये 11 साल की उम्र के थे तो इनको ताजपोशी की गई और ये वहाँ के रूलर बन गए और ये बड़ी चाइल्डहुड के अंदर ये सबसे मतलब पहले बड़े छोटे से छोटे बादशाह बने, हुक्मरान बने।
And now question 26, when Babur invaded India in 1525, Humayun was the governor. जब बाबर ने इंडिया पे कब्जा किया 1525 के अंदर, हुमायूं was the governor of हुमायूं कहाँ के गवर्नर थे? ये था बदख्शां. बदख्शां was the place where Babur was the governor. Option 27, question number 27, बाबरनामा was written by. बाबरनामा किसने लिखा था? हुमायूं, बाबर, अब्दुल फाजी, अकबर. Question number 27, the right answer is 20 B. Question option number B. Correct. बाबर ने ही बाबरनामा लिखा था. Defeated हुमायूं. Question number 28, defeated हुमायूं in the battle of Kannauj to 1540, also constituted the पुराना किला of New Delhi. हुमायूं को डिफीटेड जो हुई इन द बैटल ऑफ कनौज, आल्सो कंस्ट्रक्टेड द पुराना किला ऑफ न्यू दिल्ली. ठीक है, किसने हुमायूं को डिफीट किया था? जंग कनौज के अंदर जो जंग जो उन्होंने की थी, ये हुई थी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, जिसमें हुमायूं को शिकस्त हुई थी. क्वेश्चन नंबर 20, हुमायूं वाज बोर्न इन द ईयर. हुमायूं कब पैदा हुए थे? ये भी हमें याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये डेट्स बहुत ज़्यादा बार बार रिपीट होती हैं क्वेश्चंस के अंदर. तो इसके जो सही ऑप्शन है वो है 1508, और ये ही वाज डाइड इन 1556. ये भी हमें पता होना चाहिए, ये 1556 के अंदर डेथ हो गई थी इनकी. अब क्वेश्चन नंबर 30, हुमायूं नामा वाज रिटन बाय. हुमायूं नामा वाज किसने लिखा हुआ था? हुमायूं नामा वाज रिटन बाय गुलबदन बेगम. I think so. Question number 30 is correct option is Gulbadan Begum, because she was the sister of Humayun, and he had written this Humayunama on the order of Akbar. Question number 31, when Humayun was in exile, Kohinoor diamond was with. जब हुमायूं एक्साइल थे, मतलब लापता थे, छोड़ के लाए फरवा थे, मुल्क छोड़ के थे, दरबदर थे, तो उस टाइम हुमायूं के साथ कौन थे? क्वेश्चन नंबर 31 के जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, शाह Tahmasp of Persia. Question number 32, the main outlet for foreign trade during Akbar's reign was the Purut of Dash. जो फॉरेन जो दूसरे ममालिक के साथ जो ट्रेड होती थी अकबर के दौर के अंदर, तो वो पोर्ट कौन सा पोर्ट को यूज़ किया जाता था? क्वेश्चन नंबर 32 का है सी, सूरत का पोर्ट था, उसे ये ज़्यादा यूज़ किया जाता था. क्वेश्चन नंबर 33 है, the original name of Tansin, the greatest musician of the court of Akbar, was. जो ग्रेट म्यूजिशियन थे कोर्ट अकबर के कोर्ट के अंदर, दरबार के अंदर, उनका नाम क्या है? उनका नाम है रमतनाव पांडे. रमतनाव पांडे जो थे, ये उनके थे सबसे ज़्यादा ग्रेट म्यूजिशियन, और उनको उन्होंने अपना मियाँ का लक़ब भी दिया था. Of the following with whom Akbar did not come into contact, इनमें से कौन से थे, इनमें से कौन सा मजहब है जिसके साथ अकबर का कोई कांटेक्ट, कोई रिलेशन नहीं था? ऑप्शन है जैन्स, पारसीज, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस. देन करेक्ट ऑप्शन इज बुद्धिस्ट. बुद्धिस्ट के साथ अकबर की कोई रिलेशन या कोई मतलब कि कांटेक्ट नहीं था. क्वेश्चन नंबर 35, इन द ईयर 1582 Akbar took the momentous step of dash. 35 का क्वेश्चन का नंबर ऑप्शन ए है बैनिंग सती, रिमूविंग जिजिया, ऑप्शन सी फॉर्मिंग एन आर्मी ऑफ जैकल्स, ऑप्शन डी प्रोपाउंडिंग ए न्यू रिलीजन दीन इलाही. हम सब जानते हैं कि 1582 के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो काम की चीज़ है और जो सबसे बड़ा कारनामा अकबर ने दिया था वो ये था कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किसको किया था? दीन इलाही को, as a new religion, as a national religion. Question number 36, Hamu, whom Akbar defeated in the second battle of Panipat in 1556 was. हैमू कौन थे जिसको अकबर ने 1556 की जंग में, पानीपत की दूसरी जंग में हराया था? ये थे द मिनिस्टर ऑफ आदिल शाह. क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी. Question number 37, Mansabdari system.
मनसबदारी सिस्टम वाज फाउंडेड बाय अकबर। द मनसबदार्स वर, जो मनसबदार्स होते थे वो कौन थे? मिलिट्री कमांडर्स थे, प्रोविंशियल गवर्नर्स थे, हाई सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स थे, या ऑल ऑफ अबव थे? तो 37 के ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं, ये डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 का है, अकबर हैड कंस्ट्रक्टेड सेवरल फोर्ट्स which did not include one of them। अकबर ने जितने भी बड़े बड़े किले बनाए उनके अंदर कौन नीचे इनमें से कौन सा है जो अकबर ने नहीं बनाया? तो वो ऑफ कोर्स वो है रेड फोर्ट। रेड फोर्ट है जिसको अकबर नहीं बनाया, ये बनाया था शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 39, हु कंस्ट्रक्टेड हुमायूंस टॉम्ब इन दिल्ली? तो हुमायूंस टॉम्ब का जो हुमायूं का मकबरा है वो किसने बनाया था? तो ये राइट ऑप्शन इज हाजी बेगम, ये वाइफ थी हुमायूं की, जिन्होंने ये अकबर का मकबरा, हुमायूं का मकबरा बनाया था। टू होम डिड अकबर गिव द टाइटल मियां? अकबर ने किसको मियां का लक़ब दिया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 40 का डी, तानसीन। तानसीन जो उनके जो म्यूजिशियन थे उन्होंने इसको मियां टाइटल दिया था। अकबर मैरिड अ ब्राइड फ्रॉम? अकबर ने जो जिस लड़के से शादी की थी जिसे, तो वो किस जगह की रिहाइश पजीर थी? बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर? वो उदयपुर से रिलेटेड थी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अकबर सन एंड सक्सेसर सलीम ऑन बिकमिंग द एम्परर अज्यूम द नेम ऑफ? अकबर के जो बेटे थे जो उसके बाद जो बादशाह बने, एम्परर बने सलीम, उन्होंने अपने लिए कौन सा नाम तजवीज़ किया? तो उन्होंने अपना नाम तजवीज़ किया था ऑप्शन डी, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 43, द ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन ऑफ द reign ऑफ अकबर हु रोट अकबरनामा एंड आइन अकबरी वाज? जो ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन थे, तारीखदान थे, जिन्होंने जो अकबर के दौरे हुकूमत के अंदर जिन्होंने अकबरनामा और आइन अकबरी लिखा, वो कौन थे? क्वेश्चन नंबर 43 का है अब्दुल फजल जो थे वो बड़े हिस्टोरियन थे जिन्होंने अकबरनामा और आइन अकबरी लिखा। ये बड़ा मेन क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है हर एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 44, अकबर हैड गॉट कंस्ट्रक्टेड द बुलंद दरवाजा टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री ऑफ? अकबर ने जब किस चीज़ की विक्ट्री के बाद बुलंद दरवाजे को कंस्ट्रक्ट करवाया और अपने विक्ट्री को शो किया? वो थी जो थे ना, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए गुजरात, दिल्ली, बंगाल और उड़ीसा। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है 44 का ए, गुजरात की विक्ट्री के बाद उन्होंने बुलंद। क्वेश्चन नंबर 45, द लास्ट क्वेश्चन, इन 1542 अकबर वाज बोर्न एट? अकबर कहाँ पैदा होते हैं? 1542 के अंदर अकबर की जय पैदाइश कहाँ पे है? तो ये हमें सबको पता होना चाहिए, ये है उमरकोट के अंदर, सिंध के अंदर। सो आई होप यू हैव enjoyed this video and you have get a lot of information here, so please subscribe my channel and share it, please like, comment. Thank you very much. Allah Hafiz.